السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مختلف محکمہ جات میں مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے حکومتی اقدامات کا آغاز۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار کی جانب سے تفصیلات کا لیا جا رہا ہے جائزہ۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں اقلیتی اقامتی اسکول کی تعمیر کا رکھا گیا سنگ بنیاد۔ حلقہ اسمبلی کاروان میں 20 کروڑ کی لاگت سے اقلیتی اقامتی اسکول قائم کیا جائے گا۔ کورونا کی دوسری لہر کے پیش نظر بیرون ممالک سے آنے والے مسافرین کے ایئرپورٹ پر معائنے 14 دن کے لیے کوارنٹائن کیا جائے گا۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں شادی مبارک اسکیم کے تحت چیکس کی تقسیم۔ پنجے شاہ کے مجلسی دفتر پر رکن اسمبلی احمد بلالہ نے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ بھی مسائل کا لیا جائزہ۔ ضرورت مند اور معصوم لوگوں کو قرض دے کر بھاری سود کی رقم وصول کرنے اور دھمکیاں دینے والوں کے خلاف حیدرآباد اور سیبرآباد پولیس کی کارروائیاں جاری۔ ایس او ٹی ایل بی نگر نے غیر قانونی گٹکا اور تمباکو یونٹ پر کیا دھاوا۔ 45 لاکھ روپے مالیتی اشیاء ضبط، ایک شخص گرفتار۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے سرکاری محکمہ جات میں 50,000 تقررات عمل میں لانے کے سلسلے میں ہدایت جاری کرنے کے بعد چیف سیکرٹری سومیش کمار تمام محکمہ جات میں مخلوعہ جائیدادوں کی تفصیلات حاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اساتذہ کی 8,000 مخلوعہ جائیدادیں ہیں، جن میں سیکنڈری اسکولز، اسسٹنٹ اسکولز، ماڈل اسکولز، ہیڈ ماسٹرز، ہندی پنڈت، اردو پنڈت اور تیلگو پنڈت کے علاوہ دیگر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف محکمہ جات جیسے محکمہ صحت، پولیس، پنچایت راج اور دیگر کی بھی تفصیلات جمع کی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت ہند اور محکمہ صحت نے کورونا کی دوسری لہر پر قابو پانے اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے عوام سے احتیاط کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ برطانیہ لندن میں کورونا کی دوسری لہر کا آغاز ہونے کے فوری بعد برطانیہ سے ہندوستان اور تلنگانہ کے علاوہ حیدرآباد پہنچنے والوں کا معائنہ کیا جا رہا ہے اور اس کے فوری بعد ایئرپورٹ پر ہی انہیں معائنے کے بعد 8 دن کی بجائے 14 دن کوارنٹائن ہونے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں سردی کی لہر میں اضافے کے پیش نظر تمام افراد کورونا کی دوسری لہر سے محفوظ رہنے کے لیے سماجی فاصلہ اور ماسک کا استعمال کریں۔ ڈائریکٹر جی سرینواس راؤ نے بتایا کہ تلنگانہ میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کا فیصد 97 ہے۔ ప్రకారం గానండి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మనం చూస్తే ఇది మోర్టాలిటీ అంటే మరణాల శాతం ఏదో అసలు చాలా తక్కువగా ఉంది, నెగ్లిజిబుల్గా ఉంది. అట్లనే సివియర్ ఇల్నెస్ అంటే తీవ్రంగా ఈ వ్యాధి బారిన పట్టము, తీవ్రమైన వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించడం అనేది కూడా అత్యంత తక్కువగా ఉన్నదని చెప్పేసి మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మనం చూస్తుంది. కాబట్టి దీనికి మనం ఎలాంటి భయాందోళనకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైనా వచ్చినా సరే పాజిటివ్ వాళ్ళని ఐసోలేట్ చేయడం జరుగుతుంది, వాళ్ళని ట్రేస్ చేయడం జరుగుతుంది, వాళ్ళ కాంటాక్ట్స్ అన్నిటి కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. ఇది రాబోయే కొద్ది వారాల్లో కంటిన్యూస్గా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మనం విస్తృతంగా ఏర్పాట్లు చేసింది, అది కంటిన్యూ అవుతుంది. నిన్న ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిన తర్వాత ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు, తర్వాత చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, అంటే హెల్త్ మినిస్టర్ గారు చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి మాట్లాడి చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఇమీడియట్గా ఎయిర్పోర్ట్ హెల్త్ అథారిటీ అనుకోండి, మిగిలిన లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ అందరికి కూడా దీనికి సంబంధించింది ఏవైతే మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఆ జాగ్రత్తలకు సంబంధించింది صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ اسمبلی کاروان میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ حلقہ کاروان کے بلدی ڈویژن لنگر ہاؤس کے ابراہیم باغ میں 20 کروڑ روپے کی لاگت سے اقلیتی اقامتی اسکول برائے لڑکوں کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز اور مختلف محکمہ جات کے عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مقامی عوام کی طرف سے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا اس موقع
موقع پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر کارپوریٹر محمد نصیر الدین سوامی یادو، نمائندہ کارپوریٹر ہارون فرحان، وجیہ الزمان محمد فرید، سابقہ کارپوریٹر عزیز خان پٹھان اور راجندر یادو کے علاوہ متعلقہ صدور ابتدائی اور معتمدین بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے حلقے کے زیر التوا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک میٹنگ منعقد کی۔ پنجہ شام میں واقع مجلسی دفتر پر منعقد کی گئی میٹنگ میں محکمہ GHMC کے علاوہ حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر محکمہ جات کے عہدیداروں سے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے زیر التوا اور تکمیل شدہ کاموں کے بارے میں تفصیلات حاصل کی اور کاموں کے سلسلے میں ضروری ہدایات بھی دیں۔ اس اجلاس میں حلقہ ملک پیٹ ڈویژن کے کارپوریٹرز کے علاوہ مختلف محکمہ جات کا عملہ بھی موجود تھا۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اور رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی کی قیادت میں مقامی ادارے جات، پنچایتوں اور گرام پنچایتوں کے اختیارات ختم کرنے کے خلاف اندرا پارک کے پاس دھرنا منظم کیا گیا۔ اس دھرنے سے اتم کمار ریڈی، محمد علی شبیر، وی ہنمنت راؤ، ملو روی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کو چاہیے کہ وہ راست طور پر پنچایتوں کو فنڈز جاری کریں اور ہر ریاست میں منڈل پریشد کو جو کمزور کیا جا رہا ہے اسے اور منتخبہ عوامی نمائندوں کو ہراساں کرنے کے طریقہ کار کے سلسلے کو بند کرتے ہوئے مقامی ادارے جات کو مکمل اختیارات دیے جانے چاہیے۔ سابق BJP اراکین اسمبلی C رام چندر ریڈی اور NVS پربھاکر کی قیادت میں ایک وفد نے اسٹیٹ الیکشن کمیشن پارتھا سارتھی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک میمورنڈم حوالے کیا اور اس بات کی نمائندگی کی کہ فوری طور پر میئر کے عہدے کے لیے اعلامیہ جاری کیا جائے۔ رام چندر ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 66 ایکٹ کے تحت عوامی نمائندہ منتخب ہوتے ہی اپنے ڈویژن میں ترقیاتی کام کرنے کے لیے سرگرم ہونا اور حکومت کی طرف سے فنڈز اسے جاری کرنا چاہیے، لیکن وزیر اعلیٰ غیر جمہوری انداز میں 9 منتخبہ نمائندوں کو 8 فروری تک انتظار کروا رہے ہیں اور یہی ان کا منصوبہ ہے، لیکن یہ غیر قانونی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر شادی مبارک اسکیم کے تحت منظورہ چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے منگل کو 40 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں 1,01,16 روپے فی کس چیکس تقسیم کیے۔ مستحقین کا تعلق ملک پیٹ کے علاقے شنکر نگر، موسیٰ نگر، پلٹن، چادر گھاٹ، واحد نگر، کالا ڈیرا اور کمل نگر سے ہے۔ اسپیشل ریونیو انسپکٹر BV مہیش راجو بھی اس موقع پر موجود تھے۔ استفادہ کنندگان نے رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ سعید آباد ڈویژن کے ترونی نگر کالونی میں واقع پارک میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اوپن جم کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر سورنا لتا سنگی ریڈی بھی موجود تھیں۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ کی حرکیاتی نمائندگیوں اور بروقت کیے جا رہے اقدامات اور ترقیاتی کاموں پر مقامی عوام نے مسرت کا اظہار کیا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے مقامی عوام نے ان کی ستائش کی۔ پنجاگٹا پولیس اسٹیشن حدود کے سماجی گڑے میں واقع یشودا ہاسپٹل پہ محکمہ انکم ٹیکس کی طرف سے آج دھاوے کیے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو بلاک میں یہ دھاوے کیے گئے ہیں۔ ہاسپٹل کے پاس ڈاکٹرز کے مکانات پر بھی دھاووں کی اطلاع ملی ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹیکس کی عدم ادائیگی کے سلسلے میں یہ دھاوے کیے گئے۔ ان دھاووں میں 20 ٹیمیں شامل بتائی گئی ہیں۔ معصوم لوگوں کو قرض دے کر سود کی بھاری رقم وصول کرنے والی مختلف کمپنیوں کے ٹیلی کالرز کو سٹی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سٹی کمشنر آف پولیس انجنی کمار IPS نے میڈیا کانفرنس میں بتایا کہ مختلف پولیس اسٹیشن میں درج 16 شکایتوں پر کارروائی کرتے ہوئے سائبر کرائم پولیس نے 11 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 700 لیپ ٹاپس اور دیگر اشیاء ضبط کر لی گئیں۔ کمشنر پولیس کے مطابق گڑگاؤں کے 2 مقامات سے اور حیدرآباد کے 3 مقامات سے چلائی جا رہی مختلف کمپنیوں کے ٹیلی کالرز کو ہراسانی اور دھمکانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ اس پورے معاملے میں ہنوز تحقیقات جاری ہیں۔
मज़कूरा कार्रवाई एडिशनल सीपी क्राइम शीका गोयल और जॉइंट सीपी अविनाश मोहंती की निगरानी में अंजाम दी गई। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में मीडिया को मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। हैदराबाद सिटी पुलिस साइबर सेल के तरफ से पिछले 48 आवर्स में कुछ ऑपरेशन कंडक्ट किए गए, जिसके तहत इलीगल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के बारे में पता चला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में साइबराबाद और सिद्दीपेट में 2 सुसाइड केसेस का रिपोर्ट हुआ, जिससे पता चला कि कुछ इलीगल कंपनी लोन देती है और लोन के बाद उसको रिकवरी के दौरान जो क्लाइंट है उसको डिफेम करती है, उसके कॉन्टैक्ट्स में, उसके फैमिली मेंबर्स में, उसके फ्रेंड सर्किल में, और कभी कभी ये इस लेवल तक जाता है कि ये डिप्रेशन वो क्लाइंट बर्दाश्त नहीं करते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। पिछले कुछ समय में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद ने 16 FIRs बुक किए हैं, जिसमें कि ये अनरेगुलेटेड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं और बिना उनके परमिशन के, बिना उनके गाइडलाइंस के ये इलीगल ऑपरेशन कर रहे हैं। इसमें हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा साइबर सेल को ये इंफॉर्मेशन आया और 2 जगह, खास करके उद्योग विहार, गुरुग्राम हरियाणा स्टेट, और 3 लोकेशन हैदराबाद में जहां से कॉल सेंटर रन होता था, वहां पर रेड किया गया। इस रेड के दौरान पता चला कि क्लाइंट को हरास करने के लिए, उनको इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड केसेस में उतार चढ़ाव देखा गया। सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 617 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक की गई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1518 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,82,347 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,74,260 बताई गई है। आज सुबह 635 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 6,569 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 103 नए केसेस सामने आए। मोबाइल लोन ऐप के खिलाफ हैदराबाद पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। हैदराबाद के अलावा हरियाणा, दिल्ली और तेलंगाना के दीगर इलाकों में भी धावे किए गए। RBI कवायद के खिलाफ ये लोन ऐप चलाए जा रहे थे। साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस VC सजनार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हैदराबाद में लोन ऐप चलाने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। लोन ऐप कॉल सेंटर से वाबस्ता 1100 मुलाजमीन को नोटिस भी जारी की गई है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि लोन ऐप के जरिए जो रकम खर्च दी जा रही थी, इससे ज्यादा रकम वसूल की जा रही थी। उन्होंने बताया कि 16 ऐप चलाने वाले 4 कॉल सेंटर्स को मोहरबंद कर दिया गया है। गिरफ्तार शुदगान को तिबी मुआयने के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और उन्हें अदालत में पेश किया गया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने इन ऐप्स से आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मज़कूरा ऐप्स के खिलाफ शिकायत मिलने पर खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। आज हम लोग इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस की नाम से फ्रॉड करते हुए एक गैंग को पकड़े गए। 2 कंपनीज है, ऑनियन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड और क्रेडिट फॉक्स प्राइवेट लिमिटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 6 लोगों को हम लोग अरेस्ट किया। इसका मास्टरमाइंड है शरद चंद्र, पुष्पलता, वासवी और 3 इनका एजेंट्स, कुल मिला के 6 लोगों को हम लोग अरेस्ट किया। ये लोग गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशंस, इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस का ऐप डेवलप करके वहाँ पे होस्ट करने के बाद लोग जो पैसे का ज़रूरत रहता है वो लोग इसका एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके ये लोन लेते थे। ये लोग कैश मामा, लोन जोन, धनाधन के नाम से एप्लीकेशन होस्ट किया और बहुत सारे एप्लीकेशंस भी डेवलप करके दूसरों कंपनीज को भी सेल किया। आज इनका 6 लोगों को अरेस्ट करते 22 सेलफोन्स, 3 लैपटॉप्स, 3 डेस्कटॉप्स और 1.52 करोड़ अमाउंट 2 अकाउंट से हम लोग सीज किए गए। ये लोगों को किस को लोन का ज़रूरत है वो लोग गूगल ऐप प्ले स्टोर में जाके ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, एप्लीकेशन देने के बाद 7 दिन में
देने के लिए 5,000 रुपये का लोन देते, 35%। इनकम टैक्स से मुताल्लिक़ अदालत में ज़ेर दौरा मुक़दमात की समाअत के लिए हुकूमत की जानिब से विवाद से विश्वास तक की स्कीम का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन फॉर्म पुर करके बिना जुर्माने के टैक्स अदा किया जा सकता है। इनकम टैक्स ऑफिसर नीरज कुमार ने सिलसिले में बताया कि मज़कूरा स्कीम के तहत कोई भी फरीक टैक्स के मसले पर समझौता कर सकता है, चाहे उसे टैक्स का मामला अदालत में ज़ेर दौरा हो। इनकम टैक्स ऑफिसर नीरज कुमार ने सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताईं। ये विवाद से विश्वास स्कीम 2020 में मार्च में सरकार लेकर आई है। ये स्कीम बेसिकली जो हमारे विवाद किसी भी लेवल के कोर्ट में लंबित हैं 31 जनवरी 2020 को, उनको सुलटाने के लिए, समझौता करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो अगर आपका कोई डिमांड है टैक्स का और आपका केस चाहे पहली स्टेज पर कमिश्नर अपील्स के यहाँ है या उसके बाद अपीलीय प्राधिकरण में है, जिसको हम लोग ट्राइब्यूनल भी कहते हैं, या उसके ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में है, अगर ये विवाद चाहे वो डिपार्टमेंट का हो और चाहे वो एसएससी खुद गया हो डिपार्टमेंट के निर्णय से, अगर वो खुश नहीं है, तो ये अगर विवाद किसी भी लेवल पर कोर्ट में पेंडिंग है 31 जनवरी को, दरगाह हज़रत असदुल्ला शाह बाबा नेक नामपुरे के मुकामी लोगों ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। अब्दुर्रहमान की क़यादत में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात करने वाले वफद ने उन्हें एक याददाश्त भी हवाले की। बाद अब्दुर्रहमान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नेक नामपुरे में मौजूद दरगाह के तहत अराजी पर मुकामी लोगों को किराएदार बनाने के लिए चेयरमैन वक्फ बोर्ड को एक याददाश्त हवाले की गई है, जिस पर मोहम्मद सलीम ने सिलसिले में वक्फ बोर्ड की टीम रवाना करने और रिपोर्ट की वसूली के बाद मुनासिब इक़दाम करने का भी तयख़ुन दिया है। वफद की क़यादत करने वाले अब्दुर्रहमान ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताईं। अस्सलाम वालेकुम। जो है मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं नेकनामपुला दरगाह असदुल्ला शाह कादरी के बाद आया हूँ। वहाँ पर मेरा मुकामी घर है, वहाँ पर मैं करीबन 12 साल से रहता हूँ। वहाँ पर जो है मेरे को अभी तक किराएदार नहीं बनाया, बल्कि हम लोग चेयरमैन साहब के आए थे। चेयरमैन साहब हमको तवस्सुन दिए कि पूरे लोगों को हम लोग फिर एक बार किराएदार बनाते। जो मुतवली सुल्तान मोहिद्दीन है उनको नहीं जाने की ज़रूरत है, हमारी टीम को भी जाके उन लोग डायरेक्ट किराएदार बनाते बोल के हमको तवस्सुन दिए है। चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करते हम लोग पूरे मिलके। चेयरमैन साहब का अल्लाह उम्र अच्छी रखे और उनकी सेहत अच्छी रखे, वो हिसाब से हम लोग पूरे तवस्सुन से दुआ करने आए हैं। अल्लाह ने चाहा तो हमारे जल्द से जल्द हमारी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर दिए, तो हम चेयरमैन साहब के यहाँ से पूरे मिलके, बच्चे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उसमें, पूरे मिलके दुआ देंगे इंशाल्लाह। पूरी टीम को भी जाके जो है उन लोगों को किराएदार बना दीजिए। 100 घर मुसलमानों के हैं, अल्लाह ने चाहा तो उन लोगों को बना दीजिए। चेयरमैन साहब आपके लिए हम पूरे मिलके दुआ करेंगे इंशाल्लाह। किराएदार बनाने का तवस्सुन दे चुके हैं और सुल्तान मोहिद्दीन मुतवली जो है उनको नहीं जाना चाह रहा बल्कि उन्होंने भिजा दिए। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्ली डिवीज़न में मुतालिका कॉरपोरेटर ने आज दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। बल्ली डिवीज़न जहानुमा के कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा ने आज टेकरी, बिरयानी शाह और अलीबाग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहाँ मुकामी आवाम को सीवरेज के मसाइल थे। और मज़कूरा इलाक़े जात का दौरा करते हुए कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा ने आवाम से मुलाकात की और मसाइल की जानकारी के बाद जल्द अज जल्द मसाइल के हल का तयख़ुन भी दिया। मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा के मुताबिक इलाक़े के दीगर मसाइल का भी जायज़ा लिया गया और मुतालिका महकमों के अहदेदारों से सिलसिले में बहुत जल्द नुमाइंदगी करते हुए मसाइल की यकसुई की जाएगी। एसओटी एलबी नगर टीम ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के मल्लापुर बालाजी नगर के एक यूनिट पर धावा किया, जहां गैर कानूनी तौर पर गुटखा और तंबाकू तैयार किया जा रहा था। एसओटी टीम ने मज़कूरा यूनिट से 35 साला मोहम्मद लतीफ़ खान नामी शख्स को हिरासत में लिया। एसओटी के मुताबिक मज़कूरा यूनिट से 45 लाख रुपये मालियती गुटखा और तंबाकू जब्त किया गया। बाद अज़ां हिरासत में लिए गए शख्स को जब्त शुदा अशिया के हमरा बालापुर पुलिस के हवाले किया गया।
साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने क्रिकेट बैटिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए एक शख्स को हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में धावा किया और क्रिकेट बैटिंग कबूल करने वाले मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया गया। मोहम्मद आरिफ के कब्जे से 70,000 रुपये नकद रकम के अलावा मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया, जबकि क्रिकेट बैटिंग रैकेट में मुलविस एक और शख्स परवेज मफरूर बताया गया है। बाद टास्क फोर्स ने हिरासत में लिए गए शख्स को जब्त शुदा अशिया और रकम के साथ बहादुरपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कीमती मोबाइल फ़ोन्स के सरक़े में मुलविस 28 साला मोहम्मद शाहरुख, जो बेगमपेट पुलिस स्टेशन में सरक़े की वारदातों में मुलविस है, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार IPS ने अहकाम जारी करते हुए उसे PD एक्ट के तहत जेल भेजने के अहकाम जारी किए। इसके अलावा अराजी पर नाजायज़ कब्ज़ों के मामले में बेगमपेट के ही साकिन एक और शख्स 44 साला मोहम्मद शाहिद को भी PD एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। इंसानी स्मगलिंग केसेस में मुलविस 2 अफराद को CP रचाकुंडा ने अहकामात जारी करते हुए PD एक्ट का निफाज अमल में लाया और उन्हें जेल भेज दिया गया। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता मज़कूरा दोनों मुलज़िमीन में नारायण सरकार और मुमताज़ अली मंडल को उनके जराइम के पेश नज़र PD एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। मुख्तलिफ महकमेजात में मखलूआत जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए हुकूमती इक़दामात का आगाज़। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की जानिब से तफसीलात का लिया जा रहा है जायज़ा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में अक़लियती अक़ामती स्कूल की तामीर का रखे गया संगे बुनियाद। हल्क़े असम्बली कारवान में 20 करोड़ की लागत से अक़लियती अक़ामती स्कूल कायम किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र बैरून ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन के एयरपोर्ट पर मुआयने, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। हल्क़े असम्बली मलकपेट में शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम। पंजे शाह के मजलिसी दफ्तर पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ भी मसाइल का लिया जायज़ा। ज़रूरतमंद और मासूम लोगों को कर्ज देकर भारी सूद की रकम वसूल करने और धमकियां देने वालों के खिलाफ हैदराबाद और सैबराबाद पुलिस की कार्रवाइयां जारी। SOT LB नगर ने गैर कानूनी गुटखा और तंबाकू यूनिट पर किया धावा। 45 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।